Hello everyone, the question is thionyl chloride can be synthesized by chlorinating SO2 using PCl5. Thionyl chloride is used to prepare anhydrous ferric chloride starting from its hexahydrated salt. Alright, so alternatively what happens is the anhydrous ferric chloride can also be prepared from its hexahydrated salt by treating with 2,2-dimethoxypropane. We have to discuss all using balanced chemical equations. Alright, so starting from the synthesis of thionyl chloride. So how is it prepared? By chlorinating SO2 using PCl5. So here SO2 plus PCl5 will form, that is SOCl2. So this is our thionyl chloride. And what else product is formed here? POCl3 is formed. Alright. Now, according to the second statement of this question, thionyl chloride is used to prepare anhydrous FeCl3 from its hexahydrated salt. So we can prepare, that is anhydrous FeCl3 using thionyl chloride. So let us write that equation also from its that means hexahydrated salt of ferric chloride. So it is FeCl3 dot 6H2O. This is hexahydrated salt of ferric chloride, which on treatment with, that is SOCl2, will form the product, that is FeCl3. This is anhydrous ferric chloride plus SO2 plus HCl. So on balancing this, we get 6 SOCl2 and 6 SO2 and 12 HCl. Alright. Now moving on to the third statement. Alternatively, anhydrous ferric chloride can also be prepared from its hexahydrated salt treating with 2,2-dimethoxypropane. So we can also prepare anhydrous FeCl3 using, that is 2,2-dimethoxypropane. So let us write that reaction also. So here we have this hexahydrated salt of ferric chloride, that is FeCl3 dot 6H2O. With that I am using 2,2-dimethoxypropane. So it is CH3, and at second position we have 2-methoxy group. So it is like this. This on treatment with hexahydrated FeCl3, we get, that is FeCl3 plus CH3OH plus, that is CH3COCH3. So on balancing this, we get, that is 6 2,2-dimethoxypropane. This is 2,2-dimethoxypropane. Alright. So 6 moles of 2,2-dimethoxypropane and 12 moles of CH3OH and 6 moles of CH3COCH3. So these are the balanced chemical equations of the following statements. Thank you. क्वेश्चन में गिवन है एक सॉल्यूबल कंपाउंड ऑफ अ पॉइजनस एलिमेंट M, जो कि हम हीट कर रहे हैं ZnH2SO4 के साथ, तो हमें मिल रहा है एक एक्सट्रीमली पॉइजनस गैसेस कंपाउंड N, और जिसको अगर हम हीटेड ट्यूब के साथ पास कर रहे हैं तो हमें मिलता है एक सिल्वरी मिरर एलिमेंट M. तो वापस से हमें एलिमेंट M मिल रहा है, मतलब कि जो कंपाउंड गैसेस कंपाउंड N बना वो उसी M मेटल का डिसोशिएट हो जाता है हीट करने पे M और N में. हमें M और N बताना है. तो हमें ऐसा कंपाउंड गैस करना है जो खुद भी पॉइजनस हो और उसकी गैसियस कंपाउंड जो ZnH2SO4 से रिएक्ट करने के बाद बन रही है वो भी पॉइजनस हो. तो ऐसा कंपाउंड कौन सा होता है हमारे पास? AS यानी आर्सेनिक. ठीक है. और इसका सॉल्यूबल कंपाउंड होता है हमारे पास AsCl3, जिसको जब हम हीट करते हैं ZnH2SO4 में तो ये हमारे पास देता है AnH3 प्लस HCl. ठीक है. और जब हम इस AsH3 को हीटेड ट्यूब में हीट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलती है? हमें AS
मेटल मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, तो हमें मेटल वापस मिल गया, ये हो गया M और ये हो गई हमारी पॉइजनस गैस N। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है हमें स्ट्रक्चर बनाना है P4O10 का और आइडेंटिफाई करना है उसमें नंबर ऑफ सिंगल और डबल PO बॉन्ड्स। तो ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस हमें पता है केज लाइक और रिंग स्ट्रक्चर रखती है। तो P4O10 का हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से हमारे पास 4 P डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, P4O10 में हमें पता है P की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -20 हो गई 10 O की, तो इसकी कितनी होगी 20/4 यानी 5। ठीक है, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बनानी है, वो भी हम वेरीफाई कर लेंगे। ये इस तरीके से ऑक्साइड लिंकेज में होते हैं। ठीक है, तो इनसे अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कितनी आ गई, इस बॉन्ड की वजह से +1, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +2, तो +4 हो गई। ठीक है, हर किसी की +4 हो गई। अब क्या होता है, जो दो अपोजिट साइड के P होते हैं वो हमारे ऑक्साइड लिंकेज से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से भी +1 हो गई, तो कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट +5। तो ये स्ट्रक्चर इससे कंफर्म हो गया, सही है। तो क्या होता है हमारे पास सिंगल P सिंगल बॉन्ड अगर हम देखें तो हर P के 3, एक P सिंगल बॉन्ड हो, हर P पे 3 है, इस पे भी 3 है, इस पे भी 3 है, इस पे भी 3 है, तो टोटल कितने हो गए सिंगल 12। अगर डबल देखें तो हर P पे एक P डबल बॉन्ड हो गए, तो 4 P है, तो 4 डबल हो गए। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स गिवन है, तीनों का हमें रीजन बताना है। पहला है जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड NF बॉन्ड लेंथ है NF3 में, वो ग्रेटर होती है सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई ऑफ N एंड F। तो क्या होता है जब N और F को हम बॉन्ड बना रहे हैं तो N और F इस तरीके से ओवरलैप करेंगे, तो लेट्स से ये F की कोवेलेंट रेडियाई है सिंगल एटम की और ये N की है। तो जो सम करके जब भी बॉन्ड कुछ भी बन रहा है, मान लेते हैं बॉन्ड की हमारे पास रेडियाई RB है, तो वो लेस देन होनी चाहिए इन दोनों के कोवेलेंट रेडियाई के सम के। पर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्या हुआ है कि जो ये बॉन्ड लेंथ है RB ये ग्रेटर देन होती है R1 प्लस R2 के सम के। तो ऐसे क्यों होता है, क्योंकि N और F जो है हमारे दोनों ही बहुत स्मॉल साइज रखते हैं। ठीक है, और दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वजह से क्या होती है काफ़ी हाई होती है। ठीक है, तो क्या होता है जब हम बॉन्ड बनाते हैं इन दोनों के बीच में, तो बॉन्ड में जो रिपल्शंस होते हैं वो भी काफ़ी हाई होते हैं। उस वजह से जो बॉन्ड रेडियाई है, बॉन्ड लेंथ है जो, वो इन रेडियाई की सम से क्या हो जाती है ग्रेटर हो जाती है। तो ये हो गया हमारा A। B है Mg3N2 when reacted with water gives NH3, HCl is not obtained from MgCl2। तो Mg3N2 जो है वो हमारा वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करके NH3 दे देता है। ठीक है, 6 हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे और हमारे पास 2 NH3 के आ जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 3 MgOH होल ट्वाइस आ जाएंगे। अब ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जो Mg3N2 है वो हमारे पास NH3 और MgOH होल ट्वाइस का सॉल्ट है। तो MgOH होल ट्वाइस हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, पर NH3 हमारे पास वीक एसिड है। ठीक है, तो इस वजह से ये हाइड्रोलिसिस में जाता है। पर जो MgCl2 है वो MgOH होल ट्वाइस और HCl का सॉल्ट है। ठीक है, HCl का सॉल्ट है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस वजह से ये जो है हाइड्रोलिसिस में नहीं जाता। तो हमारे पास HCl ऑब्टेन नहीं होती, डजंट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, C है हमारे पास SiH3 होल थ्राइस जो है वो वीकर है CH3 होल थ्राइस N से। तो दोनों में क्या है हमारे पास N में लोन पेयर होता है CH3 CH3। अगर सिमिलरली हम NiSiH3 होल थ्राइस का स्ट्रक्चर बनाए तो वो कुछ ऐसा आएगा। पर ये क्या होता है हमारे पास एक्सेप्शन होता है। इसमें क्या होता है जो Si है वो हमारे पास, इसमें तो हमारे पास लोन पेयर अवेलेबल है डोनेट करने के लिए, वो डोनेट कर देगा बेसिक होगा। ठीक है,
इसमें क्या होता है, हमारे पास SI के पास होता है वैकेंट d ऑर्बिटल, तो जो N है वो अपना लोन पेयर इसके वैकेंट d ऑर्बिटल में देके क्या बना लेता है, बैक बॉन्ड। सिमिलरली ये जो बैक बॉन्ड है वो तीनों के साथ बन सकता है, तो N जो है वो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता है इन तीनों के साथ, और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है इस कंपाउंड का। जो ये लोन पेयर है ये बैक बॉन्डिंग में चला गया और रेजोनेंस में है, इस वजह से ये अवेलेबल नहीं होता डोनेशन के लिए, तो ये है पुअर बेस, जबकि ये हमारा अच्छा लुईस बेस होता है। तो ये रीज़न है हमारा कि NSiH3 होल थ्राइस इज वीकर बेस देन CH3 होल थ्राइस N।